اس وقت کی اہم خبر یہ ہے کہ عرب میڈیا کے مطابق دبئی میں ایک بار پھر جنگی سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ بحرینی سرکاری ٹی وی کے مطابق بحرین کے قصبے معمیر میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لبنانی وزارت صحت نے کہا کہ لبنان میں پیر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 102 ہو گئی ہے، جبکہ 638 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور ایک اور خبر بھی آ گئی ہے کہ ایران کا شہر کرمانشاہ زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال جس میں تازہ ترین معلومات جیو نیوز کے وار روم سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایران میں جنگ اور مشرق وسطیٰ میں حملوں سے اب تک کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے۔ اب تک 1230 اموات ہوئی ہیں، جن میں 175 اسکول کی طالبات اور عملہ شامل ہیں، جو ہفتے کے روز میناب کے ایک اسکول پر میزائل حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل میں 11 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 9 افراد 1 مارچ کو بیت شمش پر ایرانی میزائل حملے میں مارے گئے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں پیر سے اب تک 77 افراد جاں بحق ہوئے۔ کویت میں 4 اموات، جن میں 2 کویتی فوجی شامل ہیں، 6 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ بحرین میں 1 موت ہوئی۔ متحدہ عرب امارات میں 3 اموات ہوئی۔ عمان میں 1 موت ہوئی۔ اس کے علاوہ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ ایرانی فضائی دفاع نے ملک کے مغربی اور جنوبی حصے میں 7 اسرائیلی ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں ایران پر حالیہ حملے کے پس منظر میں ایک نئی سیاسی بحث چھڑ چکی ہے۔ امریکی سیاستدان اور تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کارروائی واقعی امریکی قومی مفاد میں تھی یا پھر یہ اسرائیل کے ممکنہ یک طرفہ حملے کو روکنے کے لیے کی گئی۔ امریکی سینیٹر الزبتھ وارن نے کہا کہ اسرائیل پچھلے 40 سال سے امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ پہلے صدر ہیں جنہیں وہ آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ واضح ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ لوگوں کی توجہ ایپسٹین فائلوں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے موقف سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ ایران اور امریکہ کا معاملہ مذاکرات کی میز پر حل ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تباہی پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسلامی ملکوں سے رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی ممالک اس جنگ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں۔ روس کی وزارت خارجہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل خون ریزی روکنے پر تیار ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جارحانہ کارروائیاں کرنے والے عناصر اسلامی دنیا میں تقسیم کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ روس نے پاکستان اور افغانستان سرحدی کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہا کہ اس کشیدگی سے پاکستان اور ایران سے واپس آنے والے افغان مہاجرین متاثر ہو رہے ہیں۔ کابل اور اسلام آباد سے اپیل ہے کہ فوجی تصادم سے گریز کرے اور مسائل مذاکرات سے حل کیے جائیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ اور پھر ایران کی اس سے متعلق جوابی کارروائیوں کی رپورٹنگ کس طرح سے کی جا رہی ہے، کس طرح سے کی جائے گی، اس سے متعلق ایک اہم خبر ہے۔ امریکی ٹی وی CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے نمائندے ایران میں داخل ہو گئے ہیں۔ CNN کے نمائندے کا کہنا ہے کہ انہیں ایران جنگ کی رپورٹنگ کرنے کے لیے ایرانی حکومت نے ویزے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم سرحد عبور کر چکے ہیں، ایران کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ایرانی حکومت نے ہمیں ویزا دیا ہے تاکہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران سے رپورٹنگ کر سکیں۔ اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے دارالحکومت تہران پہنچ جائیں۔ CNN کے اینکر اور رپورٹر ایران میں پہنچ چکے ہیں۔ امریکی اراکین کانگریس نے ایران پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ہی ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ یہ جنگ اسرائیل کی حمایت پر شروع کی گئی ہے۔ امریکی آئین کے مطابق جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے، اس لیے اس صدر کی جانب سے بغیر منظوری کے ایران پر فوجی حملہ آئینی حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام آباد سے زرغون شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ عالمی سٹاک مارکیٹس میں ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے 6 روز کاروبار کا ملا جلا رجحان رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی اس خبر نے گراوٹ کے شکار بازار کو سہارا دیا کہ ایرانی وزارت انٹیلیجنس مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا کہ مذاکرات کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے اور ایران کے مذاکرات کی باتوں کو جھوٹ قرار دینے کے باوجود نیو یارک ٹائم کی خبر پر عالمی اسٹاک مارکیٹس 3 دن گرنے کے بعد آج سنبھلی ہے۔ جاپان کا نکی انڈیکس 1.72% اضافے سے 55,177 پر بند ہوا ہے۔ تھائی لینڈ کا بازار 2.25%، انڈونیشیا تقریباً 1.5%، بمبئی سینسیکس 1%
और कोरियन कॉस्पी 9.5% बढ़ा है। कॉस्पी के बढ़ने की वजह कोरियन हुकूमत के 1 लाख अरब कोरियन वॉन के मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड का क़याम रहा। कोरियन सदर ने ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग से पैदा होने वाली बेयकीनी सूरत हाल को काबू करने के लिए ये फंड कायम किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज 3.5% बढ़ा है। सऊदी अरब के तदावुल में 0.5% का इजाफा हुआ है, जबकि दुबई और अबू धाबी की मार्केट्स आज भी गिरावट का शिकार रहीं। रिपोर्ट मुरतब करते हुए यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान था। इस तनाज़े के छिड़ने के बाद, इस जंग के छिड़ने के बाद बहुत कुछ मामूल के मुताबिक भी जारी है, लेकिन कई जगह पर मुश्किलात भी सामने आ रहे हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले दुनिया में तेल और गैस का बहरान पैदा करने की वजह बन रहे हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़कर $84 फी बैरल तक पहुँच गई है। कतर ने पाकिस्तान को LNG की सप्लाई रोक दी, जिसके बाद पाकिस्तान गैस की लोड मैनेजमेंट पर मजबूर हो चुका है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद पैदा होते तेल और गैस के बहरान की संगीनी बढ़ने लगी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़कर $84 फी बैरल तक पहुंच गई है। कतर ने पाकिस्तान को LNG की सप्लाई रोक दी है, जिसके बाद पाकिस्तान गैस की लोड मैनेजमेंट पर मजबूर हो गया। चीन ने अपनी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई मुल्क रिफाइनरीज की पैदावार कम करने पर मजबूर हो गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक पाकिस्तान के पास पेट्रोल, डीजल और फर्नस ऑयल के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। ताहम ऑयल मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि मकामी रिफाइनरीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी महदूद कर दी है, जिसके नतीजे में जल्द पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा होने का खदशा है। ओगरा ने अवाम से पेट्रोलियम मसनूआत की गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज की अपील की है। कतर से मार्च में पाकिस्तान को LNG के 8 कार्गो मिलना थे, अब तक सिर्फ 2 ही आ सके हैं। खदशा है कि जंगी हालात के खात्मे तक कतर से पाकिस्तान को गैस नहीं मिलेगी। इस सूरत हाल में स्विस सदरन ने रमज़ान गैस लोड मैनेजमेंट करते हुए सहरी में 6 और अफ्तार में 6.5 घंटे के अलावा गैस की फराहमी बंद रखने का ऐलान किया है। सुई नॉर्दर्न पहले ही खाद की सनतों को गैस की फराहमी बंद कर चुका है। ताहम सनतों और घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी जारी रखने का ऐलान किया गया है। ओगरा ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बायस ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 दिन के बजाय हर हफ्ता करने का फैसला किया है। इसकी हतमी मंजूरी विफाकी हुकूमत देगी। ओगरा ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद दुनिया में पेट्रोल की कीमत में 22 और डीजल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो चुका है। ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहा है कि वो पेट्रोल पंप्स को उतना तेल फराहम करना जारी रखें जितना उमूमन किसी पंप को दिया जाता है। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हमारे एटमी हथियार पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने ये कहा कि हमारा सऊदीया के साथ दिफाई मुआहिदा है और हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। PTI के डॉक्टर निसार जट ने इत्तफाक करते हुए कहा कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए लब्बैक है। दिफाई तज्ज़ियाकार जावेद इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के पास 28 दिन का तेल और 12 दिन की LPG मौजूद है। अगर अपना हुर्मुज़ बंद हो जाए तो मुतबादिल रास्ते के जरिए तेल लाने के लिए सऊदीया से मुआहिदा है। स्टेटमेंट आपको दे रहा था कि जो एटमी असासों की बात हुई है, एटमी असासे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है। ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं कोई इश्तियाल अंगेज़ी की बात हो, जहाँ इस तरह की बात हो कि आपको कोई जज्बातियत की बात हो और आप कहें नहीं मैं तो एटमी मुल्क में ये करने लगा हूँ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इसकी हिफाजत हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान भी जिस तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं और ज़िम्मेदारी के साथ इस फरीज़े को सर अंजाम दे रहे हैं, वो सब के सामने है। बाकी हमारा बिल्कुल दिफाई मुआहिदा है सऊदीया के साथ। जहाँ जहाँ हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए जिस हद तक जाना पड़ा पाकिस्तान जाएगा। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी और कोई भी नहीं। वाह जी, क्या बात कर दी जी। किसको नहीं पता कि हरमैन शरीफैन के लिए हर मुसलमान जो है वो उसके जज्बात क्या हैं, तो वो तो हम हाजिर हैं। नहीं, जज्बात नहीं, अमली लबैक है उस पर तो चलो दो राय हम सब इत्तेफाक करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई नहीं तेरा शुक्र। हमारी 80% के लगभग जरूरियात हुर्मुज़ से आने वाले तेल से पूरी होती हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी प्लानिंग कर रखी है। हमारे पास ओगरा ने जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज की हैं उसमें 28 दिन का हमारे पास तेल का रिजर्व मौजूद है। LPG प्रोडक्ट्स का
12 दिन का रिजर्व मौजूद है। सऊदी अरेबिया पेनिनसुला में एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन मौजूद है, वो इसी तनाजुर से बनाई गई थी कि अगर हुर्मुज़ में कोई क्राइसिस हो जाए, कोई ब्लॉकेट हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो जो तेल के उनके जो ज़खायर हैं, जो तेल के पैदा करने वाली रिफाइनरीज हैं, वो उनकी ईस्ट कोस्ट पे हैं, पर्शियन गल्फ के अंदर। तो वहाँ से उस पाइपलाइन के जरिए तेल जो है वो रेड सी में उनकी याम्बू पोर्ट तक पहुँचाया जाता है। तो वहाँ से हुकूमत पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट हो गया है और एक एश्योरेंस उन्होंने दी है कि यहाँ से हमें तेल सप्लाई किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के बाद आईनी अदालत में मतवाजी अपील दायर नहीं की जा सकती और ना ही इस्लाही नज़रसानी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दोबारा खोला जा सकता है। आईनी अदालत ने वाज़ेह किया कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद भी वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसलों पर निगरानी या अपील सुनने का इख्तियार हासिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट के 12 सितंबर 2024 के हुक्म के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तहरीरी फैसले में कहा कि आइन लामतनाही मुकदमेबाजी की इजाज़त नहीं देता और कानूनी जंग का कहीं न कहीं इख्तिताम ज़रूरी होता है। अभी आपको बताएंगे बलूचिस्तान के समुद्र में 100 स्पिनर डॉल्फिन्स का दिलकश नज़ारा देखा गया। WWF पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइज़र मुअज़्ज़म खान के मुताबिक ये नज़ारा अंगुल के करीब समुद्र में देखा गया। समुद्री हयात की शौकीन का मल्हाई और इन डॉल्फिन्स की कश्ती के साथ खेलने और तैराकी की खूबसूरत वीडियो रिकॉर्ड की है। मुअज़्ज़म खान के मुताबिक स्पेंसर डॉल्फिन पाकिस्तान के समुद्री हदूद की सबसे अहम नस्ल है। बलूचिस्तान के साहिलों पर इनका नजर आना समंदरी माहौलियात में मस्बत तब्दीली का एक सबूत है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत जंग ने दुनिया को सियासी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। किस मुल्क की सिफारती पोजीशन अब तक क्या है, देखिए वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट। Objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग से दुनिया सिफारती और सियासी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बरतानिया, इटली और फ्रांस इस वक्त अमरीकी और इसराइली जारहियत का दिफा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान पर हमले की मजम्मत करने वाले ममालिक में रूस, चीन, पाकिस्तान, स्पेन, ब्राज़ील, क्यूबा और अल्जीरिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। रूस ने सलामती कौंसिल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये हमला अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान की सालमियत पर हमला है और इससे खित्ते में सियासी और मुआशी बहरान पैदा होने का खदशा है। Washington and West Jerusalem's actions are nothing other than yet another unprovoked act of armed aggression against a sovereign and independent UN member state in violation of the Charter of the organization and of the fundamental principles of international law. चीन ने हमले को खित्ते में जारहियत करार दिया। पाकिस्तान ने कार्रवाई को ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया और फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. Yet again, these attacks come at a time when renewed diplomatic efforts were underway. यूरोप के अंदर इख्तिलाफ बरकरार है। स्पेन ने जंग को तबाहकुन रास्ता करार देते हुए फौजी शमूलियत से इनकार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में आर्टिकल 51 की तशरीह पर तवील बहस हुई। जापान और जनूबी कोरिया मोहतात पॉलिसी अपना रहे हैं, जबकि भारत ने अपनी पोजीशन वाज़े तो नहीं की, मगर मोदी की जानिब से इसराइल का हालिया दौरा और उसे भारत का करीबी दोस्त करार देना जाहिर कर रहा है कि फ़िलहाल वो किस कैंप में हैं। जंग शुरू होने से लेकर अब तक की सूरत हाल का नक्शा कुछ यूं है। वॉर रूम के लिए वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में ईरान की खवातीन फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का ईरानी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच से पहले ईरानी तराने पर अपनी मुसल्लह अफवाज को सैल्यूट किया। तराने के इख्तिताम पर शायकीन ने भरपूर तालियां बजाकर ईरानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। यहाँ आपको बताएंगे भारतीय तैयारा का सुखोई तैयारा लापता हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे ने आसाम से उड़ान भरी थी। परवाज के बाद कंट्रोल टावर से इस तैयारे का राबता टूट गया। इमदादी टीमों ने तैयारे की तलाश शुरू कर दी है।